Greetings, students, and welcome back to the English class. Now, the chapter we were doing was Landscape of the Soul by Natalie Travoy. Okay, now what were we doing in this chapter? We had learned about this paintings, many paintings. Okay, now let us revise. What were we doing? See, now introduction. Written by Natalie Travoy. तो किसने लिखा है? Natalie Travoy ने. The chapter is about how different the Chinese art form is from the European art form. तो किस डिफरेंस की बात करी है? चैप्टर्स की डिफरेंस की बात करी है कि जो चाइनीज़ आर्ट फॉर्म है वो यूरोपियन आर्ट फॉर्म से कितना डिफर करता है. ठीक है. द राइटर यूजेस 2 स्टोरीज टू मेक अ कॉन्ट्रास्ट. तो राइटर्स क्या बनाते हैं? 2 स्टोरीज बताते हैं ताकि हमें उसका डिफरेंस पता चल जाए. Right? European art is about reproducing an actual view, whereas Chinese art is about not creating a real landscape. तो जो यूरोपियन आर्ट है चिल्ड्रन, वो हम किसके बारे में बात करते हैं? इट इज़ अबाउट हम किसके बारे में बात करते हैं? एक्चुअल व्यू, है ना, जिसपे हमने देखा था कि एक इंसेक्ट था. राइट? वी टॉक्ड अबाउट हियर वी टॉक्ड अबाउट when कोई मक्खी थी जो उसने पेंट करी गई थी. ठीक है, ताकि वो उसके डॉटर से शादी कर पाए. वेराज यूरोप जो चाइनीज़ थी वो क्या है? रियल लैंडस्केप के साथ है, नॉट क्रिएटिंग अ रियल लैंडस्केप, है ना. हमने पढ़ा था ये इसके बारे में. ओके, ना यूरोपियन आर्ट इज एन artist's way to let viewers show exactly what he wants them to see in the landscape. तो जो चिल्ड्रन यूरोपियन आर्ट है इज एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट है इन द वे टू लेट व्यूअर्स शो एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स देम टू सी इन द लैंडस्केप. तो यूरोपियन आर्टिस्ट वो बताते हैं कि उनको क्या देखना चाहिए. जो व्यूअर्स हैं, जो व्यू करते हैं, उनको क्या है, क्या देखना चाहिए. राइट? Chinese art is the artist's spiritual and inner voice where you can travel from any point, and it lets the viewer creates a path of their imagination. अब जो यूरोपियन आर्ट है वो खुद जो बना पड़ा है हम उसी में व्यू कर सकते हैं जो हमें पेंटर दिखाना चाहता है. बट जो चाइनीज़ है वो स्पिरिचुअल है, वो हमारी इनर वॉइस को रिलेट करती है. राइट? जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन से वो पेंटिंग को देख सकते हैं. राइट? नेक्स्ट थीम. अब हमारा थीम क्या है? द राइटर कॉन्ट्रास्ट्स चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट by recounting 2 stories about Chinese art and 1 story about European art. ठीक है. The Europeans want a perfect likeness, whereas in Asia, art is the essence of life and spirit. Chinese art requires the active participation of the viewer, both physical, mentally, to understand it. Okay? तो Chinese art का क्या है? वो व्यूअर्स को क्या करता है? इन्वॉल्व करता है ताकि वो खुद क्या करे, फिजिकल और मेंटल उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें. नाउ व्हाट कैरेक्टर्स डू वी हैव? Wu Daozi, the 8th century Chinese landscape painter, disappeared inside his last painting. An emperor, Wan Zong, he admired Daozi's painting but was not an active participant in it. Now, Quantum Mitze, he was the 5th century Belgium blacksmith, ठीक है, लोहार जिसे बोलेंगे, who changed his profession to become a delicate realistic painter and marry the women he loved. ठीक है. तो ये 3 कैरेक्टर्स हैं हमारे किस में, हमारी स्टोरीज में. राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी. We have vocabulary first. Here, splendid. What does splendid mean? Which is very impressive or superb, very superb. Now, what does disciple mean? A disciple is a follower or a pupil or a leader, teacher. ठीक है, is a follower or a pupil of a leader. ठीक है. Anecdote, a short interesting story of a real person. Flanders, a medieval country in Western Europe.
Antwerp is a city of northern Belgium. Delicate realism, the quality of art that makes seems real. Swat, hit or crush something. जब क्या करा था पेंटर ने, वो मक्खी बनाई थी, मच्छर बनाया था, तो उन्होंने क्या करा था, मारा था. अप्रेंटिस, ट्रेनर और लर्नर. Illusionistic likeness, an illusion created which resembles something. Figurative painting, metaphoric representation of an art, leisurely, unhurried or relaxed, conceptual space, relation with the abstract, representation. Taoism, a Chinese philosophy based on writing of Lao Tzu, void, empty, and vacant, conduit, channel, oppressed, burdened, lofty, tall, or high. Now, the summary. Comparison between European and Chinese art, right? Okay. Art is one of the forms of expression like poetry, music and dance. तो उसने बोला है this chapter is a comparative study of European and Chinese art. It touches upon various subtleties of reality and art. Art is one of the forms of expression like poetry, music, and dance. All these forms of expression have an abstract nature as they can't be defined and have to be felt or expressed. The chapter has three important areas of discussion: anecdotes, that are small stories related to Chinese and European painting, Taoism, and how one of the philosophical doctrines of Taoism called Sanshui is reflected in Chinese painting. This we will, what is Taoism, we will study in a brief way, okay, in the one of the slides that I have made for you. Now, anecdote about a Chinese painter, Wu Daozi. Anecdote, a small story. The 18th century Chinese emperor Wanzong commissioned means ordered a painter named Wu Daozi to paint a landscape. तो एक Chinese emperor थे Wu Wanzong, उन्होंने एक ऑर्डर दिया पेंटर को. कौन थे पेंटर का नाम क्या था? वू डाउजी, की एक लैंडस्केप पेंट करो. When the painting was ready, the emperor is invited to appreciate it. जब पेंटिंग रेडी हो गई थी ना, तो क्या हुआ, पेंटर को बुलाया गया किस चीज़ के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए. ही इंजॉयड लुकिंग एट द फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, waterfalls, clouds, men on hilly paths, birds in flight, etc. depicted in the painting. तो वो जो क्या बोलते हैं किंग थे, किंग टोंग है उनका नाम, ठीक है, टोंग एम्परर वांगजो, ठीक है, उनको बहुत अच्छे लगे. क्यों? वहाँ पर फॉरेस्ट थे, हाई माउंटेन्स थी, वाटरफॉल थे, क्लाउड्स थी, ठीक है. बट द पेंटर वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही इन्वाइटेड द अटेंशन ऑफ द एम्परर टुवर्ड्स अ केव इन द पेंटिंग. तो जो पेंटर थे ना, वो डाउजी, वो क्या थे, सेटिस्फाइड नहीं थे. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एम्परर को अपनी सोच को लेकर उनको बोला, चलो मुझे फॉलो करो. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड. तो उन्होंने क्या करा, क्लैप करा, ठीक है. व्हेन यू क्लैप योर हैंड्स, कॉजिंग द एंट्रेंस ऑफ द केव, ठीक है. जैसे उन्होंने क्लैप करा तो केव का दरवाज़ा खुल गया. देन द पेंटर सेड, द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, वेरी ब्यूटिफुल, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. कि ऐसा सुंदर था कि कोई जो बोलते हैं वर्ड्स भी नहीं बयान कर सकते थे. प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे. उसने बोला, मैं आपको वे दिखाता हूँ. द पेंटर एंटर द केव एंड डिसअपियर. तो पेंटर आता है और वहाँ डिसअपियर हो गया. द केव डोर क्लोज एंड द पेंटिंग डिसअपियर्स फ्रॉम द वॉल बिफोर द एम्परर कुड मूव. और जैसे वो केव के अंदर जाता है, डोर क्लोज होता है और सब कुछ, पेंटिंग के साथ साथ वू डाउजी भी गायब हो जाते हैं, राइट ना. उस पेंटिंग में जब चाइनीज़ लोग चिल्ड्रन पेंटिंग बनाते हैं ना, वो ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं बना पाते हैं, ठीक है, वो कुछ धुंधलापन होता है उसमें, राइट. एनेक्डोट अबाउट यूरोपियन पेंटिंग, क्वेंटिन मिट्सेज. अब दूसरी कहानी है जो यूरोपियन है, ठीक है. पहली वाली क्या थी, चाइनीज़ की थी. अब क्या है, anecdote of European painting, ठीक है. Let's continue with, okay. A
15th सेंचुरी, वो कौन से सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में थे, बेल्जियम ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार, नेम्ड क्वेंटिन मेट्से फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, तो किससे प्यार कर बैठे वो, एक पेंटर के डॉटर से, knowing that her father would not accept him because of his profession, और वो गर्ल को पता था कि मेरे फादर को जो ये क्वेंटिन मेथ से हैं ये पसंद नहीं आएंगे क्योंकि वो काम ऐसा करते। ही सीक्रेटली एंटर द पेंटर स्टूडियो एंड पेंट सच अ रियलिस्टिक फ्लाई, ठीक है, एक फ्लाई को पेंट करा जो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक था, जो एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि कोई फ्लाई बैठा हुआ है उस पर। ऑन द आर्टिस्टिक पैनल दैट द मास्टर ट्राई टू स्वैट इट, स्वैट मतलब उसको मारने की कोशिश करी, उन्होंने सोचा कि मेरे क्या है, मेरे आर्ट रूम में ये कौन सा आ गया है, ये फ्लाई कहाँ आ गया, तो उन्होंने स्वैट करा, मारा उसको। एंड बिफोर ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट रियल, फिर उनको लगा कि इट इज़ नॉट रियल। क्वेंटिन वॉज accepted by the master as an apprentice is the trainer, तो ठीक है, क्वेंटिन को बहुत पसंद आया और उन्होंने क्या है उसको क्या करा, एक्सेप्ट किया, मैरिड his beloved daughter and soon became famous for his realism, married his beloved, तो जो वो क्वेंटिन था उनको वो अपनी गर्लफ्रेंड से मैरी करते हैं और ही बिकेम फेमस फॉर हिज रियलिज्म इन पेंटिंग। Now, meaning of the tales. Such stories as that about Wu Daozi are very common in Chinese classical education. अब जो डाउजी ने करा था ना, एकदम से केव बनाया फिर गायब हो गया, पेंटर भी गायब हो गया, पेंटिंग भी गायब हो गई चिल्ड्रन, ऐसी बड़ी कॉमन है, कहाँ पर, चाइनीज़ में। It was through such stories that great masters made abstract concept concrete, ठीक है, जो ऐसी स्टोरीज को जो एक इमेजिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हम छू नहीं सकते, जो हम सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं, वो कॉन्सेप्ट उन्होंने कॉन्क्रीट रखा है। सच टेल्स रिवील दैट आर्ट इज एन इनर लाइफ, मीनिंग और सोल। ओनली व्हेन वन इज एबल टू सी द इनर लाइफ कैन वन अंडरस्टैंड इट्स ट्रू मीनिंग। तो वो बोलते हैं ओनली वन इज एबल टू सी द इनर लाइफ, जब हम अंदरूनी चीज़ें देखते हैं तभी हम एक ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ फील कर सकते हैं कि ये सही है। द एम्परर हैड अप्रिशिएटेड द पेंटिंग, तो एम्परर ने क्या करा, अप्रिशिएट करा, किस चीज़ को, पेंटिंग को, ओनली फॉर वॉट ही वॉज, he could only see the body of the painting, whereas the painter tried to show from him the soul, the inner meaning of the पेंटिंग। तो क्या बोलते कि जो वू डाउजी थे चिल्ड्रन, उन्होंने क्या करा, एक सिंपल पेंटिंग बनाई, ठीक है, और जो किंग थे, ठीक है, तांग थे, उन्होंने क्या करा, एम्परर टैंग थे, उन्होंने सिंपल क्या करा, एक फॉरेस्ट देखा, माउंटेन्स देखे, रिवर्स देखी, क्लाउड्स देखे, बट जब वो उनको बोला कि देखो अब क्या खुलेगा, केव खुलेगा, तो वो क्या कर रहा है, इनर लाइफ की तरफ जा रहा है, मीनिंग ऑफ द पेंटिंग के थ्रू जा रहा है। सिमिलरली क्वेंटिन मिट्सेस सिग्निफाइड इल्यूजनेटिक लाइकनेस इन यूरोपियन पेंटिंग, तो क्या करा उन्होंने, इल्यूजनेटिक लाइकनेस को इन यूरोपियन पेंटिंग। तो चिल्ड्रन इल्यूजनेटिक लाइकनेस को क्या मतलब है ना, एन इल्यूजन क्रिएटेड विच रिजेंबल समथिंग रियल, ठीक है, जो कुछ रियल को इल्यूजन की क्या बोलते हैं इसको, एन इल्यूजन क्रिएटेड विच रिजेंबल समथिंग रियल, जो समथिंग रियल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, राइट, दिखाता है तुम्हें। The same holds good for the story about frightening likeness of a dragon of a real one who prevented a Chinese painter from drawing its eye, as he felt that when the dragon would see him and attack him. तो सिमिलरली एक और स्टोरी बता रखी चाइनीज़ की कि एक चाइनीज़ पेंटिंग करता था, ठीक है, एक चाइनीज़ पेंटर पेंटिंग करता था और उसने एक ड्रैगन तो बना दिया। अब उसने जब वो ड्रैगन बनाए ना, उसने आंखें नहीं बनाई, क्यों, उसने ये सोचा कि अगर मैं ड्रैगन की आंखें बनाऊंगा वो अटैक करेगा, वो यहाँ से फ्लाई कर जाएगा, तो इसलिए उसकी आंखें नहीं बनाई। Now, basis of Chinese painting are based on the philosophy of Taoism. Tao meaning path और way, ठीक है, ये अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो चाइनीज़ का
जो पेंटिंग का बेस है वो फिलॉसफी के ऊपर चलता है, डाओइज्म। डाओ का मतलब पाथ और वे होता है। द वे इनटू मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। द एम्परर may रूल ओवर टेरिटरी बट द आर्टिस्ट अलोन नोज द वे विद इन। तो वो बोलता है कि जो एक एम्परर होता है, जो एक किंग होता है, वो सिर्फ एक एरिया को रूल करता है, बट जो पेंटर होता है वो स्पिरिचुअली, फिजिकली वहाँ अंदर तक चीज़ों को लेके जाता है। लाइफ हैज़ नो मीनिंग अनलेस वी अंडरटेक द इनर स्पिरिचुअल जर्नी। उसने बोला लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है अगर हम अंदर क्या लेके जाएं, इनर और स्पिरिचुअल जर्नी। When Wu Daozi said, "Let me show you the way," उसने जब वू डाउजी ने बोला "Let me show you the way," he meant the way of the inner meaning or meaning of art or mystery of the universe. ठीक है, this is the spirit of Chinese painting. They do not reproduce an actual view, but use a real landscape to say something more. A Chinese painter, therefore, wants the viewer to take plural viewpoints, to enter into the painting and travel within it. He wants our active participation, not only physically but also mentally. Physically हम देख सकते हैं, हम चीज़ें बता सकते हैं, बट उनको क्या चाहिए, इसके अलावा हमारा क्या चाहिए, मेंटल भी चाहिए, राइट। His landscape is not a copy of a real landscape. ठीक है, तो it's not a copy of a real land. It is the representation of an inner, realistic, a spiritual and conceptual space. Now, what is what Taoism is? ठीक है, Taoism का मीनिंग क्या है? According to Taoism, children, the universe is compared to complementary poles. That is yin, that is feminine, and yang, masculine. तो children, according to Taoism, चीज़ें क्या होती, दो चीज़ों से बनी होती। यिन जो कि फेमिनाइन है, जो कि यहाँ पर रिवर को क्या करा गया है, इंटरप्रेट किया गया, रिवर को लेके बोला गया। द इंटरैक्शन ऑफ दीज टू एनर्जी मेक्स द यूनिवर्स। तो बोलते जो यिन और यांग है, इन दोनों की अगर इंटरैक्शन होती है तो एक यूनिवर्स बनता है। ठीक है, द मीटिंग पॉइंट called the middle void also holds a great significance. तो जहाँ पर ये दोनों पहाड़ और रिवर मिलते हैं तो वहाँ पर मिडल वॉइड बोलते हैं। ठीक है, वॉइड इज समथिंग विच इज एम्प्टी, ऑल्सो होल्ड्स अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है, दो इट इज ऑफन ओवरलुक्ड। ठीक है, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। ठीक है, ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट। तो उसने बोला है कि जो ये मिडल वॉइड है वो किससे कंपेयर किया गया है, प्राणायाम में। यू ब्रीद इन, यू रिटेन, स्टॉप, एंड देन यू ब्रीथ आउट। द रिटेन पार्ट इज द मिडल वॉइड, जो हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं ना सांस, इसको बोला गया है मिडल वॉइड। क्या बोला गया है इसको, मिडल वॉइड, वे मेडिटेशन अकर्स। और यहीं पर ही क्या होती है चिल्ड्रन, मेडिटेशन अकर होती है। दिस वॉइड इज इसेंशियल। उसने बोला ये जो वॉइड चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। और यहाँ से क्या है, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। इन डाओइज्म अ लैंड इज कॉल्ड शैनशुई। डाओइज्म में एक लैंडस्केप को कॉल क्या करते हैं, शैनशुई। शैन मीनिंग माउंटेन, शुई मीनिंग वाटर। However, it doesn't represent a real landscape. और यहाँ पर वो क्या करते हैं, एक रियल लैंडस्केप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इट इज़ द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। टू अंडरस्टैंड द चाइनीज पेंटिंग वन मस्ट अंडरस्टैंड डाओइज्म। अगर हमें किसी डाओइज्म को या किसी चाइनीज पेंटिंग को अंडरस्टैंड करना है तो हमें किसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें डाओइज्म पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो द माउंटेन्स एंड वाटर्स इन द चाइनीज पेंटिंग आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शैनशुई। तो किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है उनका, शैनशुई का। एंड द अनपेंटेड स्पेस इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिडल वॉइड, मिडल खाली एम्प्टी। Where the interaction between both yin and yang, कहाँ पर, जहाँ पर ये दोनों के दोनों yin और yang takes place होते हैं, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं।
मैन इज द मीडियम कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। और वो बोलते हैं कि जो मैन है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है, ये दोनों इंटरैक्शन पोल्स है बिटवीन द यूनिवर्स। एंड यू कैन सी हिज प्रेजेंस टू इन द चाइनीज पेंटिंग। और उसने बोला कि तुम लोग भी क्या कर सकते हो, इसकी इंटरैक्शन देख सकते हो। ठीक है, किसके में, चाइनीज पेंटिंग में। The landscape of the soul. Now, French painter Jean Duffet first created the concept of art brut. ठीक है, और रॉ आर्ट, जो आर्ट ब्रूट को क्या बोलते हैं, रॉ आर्ट, इन 1940s. देन द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वाज माइनॉरिटी इंटरेस्ट. उस समय जो आर्ट लोग कौन करते थे, जो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी थे. ठीक है, द आउटसाइडर्स आर्ट has gradually become the fastest growing area of the interest in international modern art. Now you can see this is the outsiders art, और जिसको हम raw art या brute art भी बोलेंगे. फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा था कि हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 में बृंदा सूरी ने एक आर्टिकल लिखा था. क्या, किसने लिखा था, बृंदा सूरी ने. और उन्होंने क्या लिखा था, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर्स आर्ट. ओके, नाउ वी विल डू दैट. ओके चिल्ड्रन, नाउ लैंडस्केप ऑफ द सोल. दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क इज द क्रिएशन of those who has no right to be an artist as they have received no formal training. तो उन्होंने बोला कि अगर इंसान ने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं करी हुई रहती, उसको क्या बोलना है, आर्टिस्टिक बुलाने का कोई हक नहीं है. येट दे शो द टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट. तो देखो, ये भी तो एक काइंड ऑफ आर्ट है. अगर हम अनट्रेंड है या कुछ भी हैं, तो चिल्ड्रन हम भी एक काइंड ऑफ आर्टिस्ट ही माने जाएंगे. आर यू क्लियर टू इट? लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ 80 years ऑफ ओल्ड नेकचंद इन इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स आर्ट. तो नेकचंद ने सबसे बड़ा क्या करा है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करा. ही हैज़ मेड अ गार्डन स्कल्प्टेड विथ स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटीरियल. ठीक है, इट इज़ नोन एज द टू द वर्ल्ड एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़. तो ये है ना, ऐसे बनाया गया है, पत्थरों से सब कुछ बनाया गया ताकि वो क्या लुक कर सके, ब्यूटीफुल, इसको ब्यूटीफुल लुक कर सके. ठीक है, विद द रिमेन्स ऑफ एवरीथिंग. नाउ हिज आर्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी. टेस्टिमनी मीन्स प्रूफ ऑफ समथिंग which is very different, of the difference a single man can make when he lives his dream. तो उसने बोला एक सिंगल मैन बना सकता है when he kind of lives his dream, right? नाउ इन दी इसमें क्या बोला गया है, जो हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 में पब्लिश हुआ था, तो उन्होंने एक चीज़ और बोली गई थी. द 5-month इंट्रैक्शन शोन रिलीम ऑफ नेकचंद बिगिनिंग ऑन अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली. द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन. तो नेकचंद क्या बोलते हैं, जो लास्ट लाइन्स हैं वो नेकचंद एक चीज़ बोलते हैं कि जो बिगेस्ट रिवॉर्ड है, ठीक है, इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, व्हेन यू वॉक थ्रू द गार्डन एंड चिल्ड्रन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन. नेकचंद सेज, और नेकचंद ये बोलते हैं कि सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या होता है, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट चिल्ड्रन ये होता है कि जब हम गार्डन में हो और लोग उसको देखकर क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. ये सबसे ज़्यादा क्या है, उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट. तो आर्ट ब्रूट को क्या बोला था, मैंने पहले भी बताया था कि रॉ आर्ट बोलते हैं वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन. तो उन्होंने जो ये रॉक गार्डन है वो किस चीज़ में, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कैन बी अ मटीरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट. उसने बोला कुछ भी चीज़ें, ठीक है, हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं चिल्ड्रन, वर्क आर्ट में कर सकते हैं. समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन ऑफ डिजिंग हाइट्स, डिजिंग वेरी अमेजिंग हाइट्स. ठीक है, उसके जो
वर्क है, ये जो क्या बोलते हैं, गार्डन है, रॉक गार्डन है, किसने रिकग्नाइज करा? यूनेस्को ने भी रिकग्नाइज करा गया है, राइट? और उनका जो its 80 years old creator, director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsiders art, right? Now the fifth, now he was awarded with many of the awards for doing all these things. Now I hope you have understood the chapter. Thank you, children.